Hello everyone. Welcome to the class. So MDEH के सेकेंड क्लास में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग इस सेशन को इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में करेंगे, ठीक है, ताकि दोनों स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए बात, हिंदी वालों को हिंदी में और इंग्लिश वालों को इंग्लिश में। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में, फिर उसके बाद उसी का समरी हिंदी में, फिर ऐसे कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप हमारा लेक्चर चलेगा। सो बेसिकली प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फ्रोजन शोल्डर के बारे में देखा था, उसके एनाटॉमी के बारे में मैंने बात किया था, डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो वो क्लास आप लोगों को फिर से एक बार अगर डाउट है तो एक बार देख लीजिए या उसको रिवाइज कर लीजिए। आज हम उसको मैनेज कैसा करना है, सो हाउ टू मैनेज फ्रोजन शोल्डर और हाउ टू ट्रीट फ्रोजन शोल्डर। बेसिकली इट इज स्ट्रक्चरल इश्यू। ओके, स्ट्रक्चरल इश्यू तो हमने देखा था, वी सॉ दैट देर इज ए कैप्सूल so which was inflamed. Okay, that is the major cause of frozen shoulder, means the inability to move the joint, to lift the joint. Okay, so this is the issue, real issue. So how to clinically apply this frozen shoulders? Okay, so basically in your clinic, so you are a doctor, electrohomeopathy doctor, a patient come to your clinic. Okay. So what he telling? He's telling that gradually my pain is increasing day by day in the right shoulder or left shoulder. And along with that, along with pain, I have stiffness. So what are those two things? Pain with stiffness. Pain with stiffness. Very important. Pain with stiffness and limited range of movement. I have pain, I have stiffness, and the movement is reduced. My movement is reduced along with movement decreased. Means what is this clinical diagnosis? The patient had a past medical history of type 2 diabetic mellitus. Based on physical examination and past medical history, the diagnosis is. So we know that this case is frozen shoulder. So here you have three clinical symptoms, very, very important clinical symptoms, that is pain, stiffness, and limited movement of the joint. Okay, along with that, you have medical history, that is the patient belong to diabetes mellitus. Okay, so this is the classical example of frozen shoulder in your clinic. So now important things related to that. So what is frozen shoulder? Already we discussed that adhesive capsulitis, inflammation of the capsule, inflammation of the capsule. Okay. So what will happen? The joint where the humerus bone and scapula bone, glenoid cavity, where are coming together, they have capsule, there is inflammation. And what happens? Shrinkage. The structure is reduced. The width is reduced. The length and breadth, everything is reduced of the capsule. Okay. So what will happen? It will give tightness. It will give adhesiveness to the both bones, and you have synovial membrane, synovial fluid, everything that. So what will happen? The capsule is reduced, means there is a issue on the synovial joint also, synovial fluid, synovial membrane, everything is will affect according to the condition, how much amount of capsule is affected. So there is movement, decreased movement, stiffness, and pain. So this is called frozen shoulder. Okay, so here what happened? Here the joint capsule along with ligaments have a rich nerve supply. Hence, they are acutely sensitive to pain. So why there is excessive pain in frozen shoulder? Because the rich amount of nerve supply to that area. This is the one very important question and answer. Articular cartilage. So there is a cartilage that, but there is non-nervous structure. Hence, it is sensitive to pain.
The synovial membrane has poor innervation, hence relatively insensitive to pain. So basically, the capsule, the capsule is there. There is no nerve supply or less nerve supply. There is no vascular supply, blood supply. Okay. So the capsule is insensitive to pain, but whatever things are present in and around that capsule, that is very sensitive to pain, ligaments, everything. Okay. So there's the reason there is a no pain in capsule, but in and around due to the capsule inflammation that is affected on nerves, everything that there's the reason you have excess pain. So we discussed everything, shoulder joint and synovial socket joint, head of humerus, glenoid cavity, okay, joint capsule, rotator cuff muscles also we discussed. Okay, it is inflamed. So what happened? This is the patient will telling to you. But internally, what happened? Inflammation. What happened? Internally, inflammation. Number one. Internally, next, thickness, thickened. Okay, thickened. And next step is fibrosed, hardening. Okay, fibrosed happen, hardening. That's the reason movement is reduced. So here also synovial fluid also decrease. Okay, capsule adhesiveness also restricted. Okay, and that's the reason movement is reduced. So there are the structure affected joint capsule. Structure is involved anterior in inferior capsule, rotator interval, supraspinatus tendons also affected because it is spreading na, the inflammation. Okay, ligaments are also affected and they are contracted and tight. Okay, synovial membrane is affected in early stage. So what is the causes? So now I will revise in Hindi. So basically हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था फ्रोजन शोल्डर का मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक पेशेंट आपके पास आया जिसने कंप्लेंट किया आपसे कि मुझे ग्रेजुअली पेन बढ़ा, प्रोग्रेसिवली, और स्टिफनेस है, अकड़न है, अकड़न जकड़न जो भी कहते हैं अपने लैंग्वेज में, और साथ में जो है जो देखने को मिल रहा वो है साथ में आपको देखने को मिलेगा लिमिटेड मूवमेंट। ओके, लिमिटेड रेंज ऑफ मूवमेंट। सो ये पेशेंट आपके पास आया है और आने के बाद उसका कंप्लेंट क्या था? पेन था, स्टिफनेस था और लिमिटेड मूवमेंट था। तो उस वक्त आप क्या डायग्नोसिस करोगे पेशेंट? और साथों साथ उसको क्या है, डायबिटीज मेलिटस भी है। तो ये पेशेंट का डायग्नोसिस क्या होगा? ये पेशेंट का डायग्नोसिस होगा फ्रोजन शोल्डर। ये पेशेंट का डायग्नोसिस क्या होगा? फ्रोजन शोल्डर, क्योंकि हमने देखा था एनाटॉमी में कि फ्रोजन शोल्डर में होता क्या है, जो कैप्सूल है उसमें इन्फ्लेमेशन होगा, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसमें भी इफेक्ट होगा, जो कैप्सूल है, मेम्ब्रेन है, फ्लूइड है, तमाम चीज़ों में इफेक्ट होगा। तो इसी वजह से वहाँ पे पेन भी होगा, स्टिफनेस भी होगी और साथों साथ मूवमेंट भी डिक्रीज होगा। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन से ही आप फ्रोजन शोल्डर की डायग्नोसिस कर पाएंगे। ठीक है। तो पेन क्यों ज्यादा है? इसलिए ज्यादा है वहां पर नर्व सप्लाई जो है उस एरिया में बहुत ज्यादा है। कैप्सूल और कैप्सूल के इन एंड अराउंड तो नर्व सप्लाई कम है, लेकिन उसके लिगामेंट्स हैं वहां पर जो सेंसिटिव पेन को सेंस करते हैं, और दूसरे मेम्ब्रेन से, तो ये सेंस करेंगे पेन को। ठीक है। तो इस वजह से वहां पर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है पेशेंट को। अब एनाटॉमी के बारे में मैंने बताया था कि वहां पे ह्यूमरस बोन है, हेड ऑफ द ह्यूमरस, और ग्लेनॉइड कैविटी है। ये दोनों कंबाइंड होकर आपका शोल्डर जॉइंट बना रहे हैं। तो ये शोल्डर जॉइंट को क्या कहेंगे हम? साइनोवियल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। हेड ऑफ द ह्यूमरस है, ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला है। ठीक है, इसको जॉइंट को
अ, उसको मजबूत रखने के लिए वहां पर रोटेटरी कफ मसल्स है, 4 मसल्स है जिसके बारे में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था। और लिगामेंट्स भी है। लिगामेंट्स भी क्या है, आपके शोल्डर जॉइंट को पकड़े हुए हैं। ठीक है। तो जब फ्रोजन शोल्डर हो जाता है तो कैप्सूल, जो दो जॉइंट को चिपकाने वाला जो कैप्सूल है, ये भी एक लिगामेंट ही है। ठीक है। तो वहां पर इन्फ्लेमेशन होगा। ठीक है। उसकी वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से वहां पे थिकनेस होगी। ठीक है। और फाइब्रोस हो गए वहां पे। जहाँ पे इन्फ्लेम होगा उसके साथ थिकनेस होगी, साथों साथ वहां पे सख्ती भी आ जाएगी। ठीक है। और इसी के साथ साथ जो साइनोवियल फ्लूइड भी है वो भी इफेक्ट होगा। ठीक है। और जो कैप्सूल है पूरा का पूरा अगर इफेक्ट होगा तो पूरा शोल्डर मूवमेंट नहीं होगा, पेन एक्सेस होगा, स्टिफनेस बहुत ज्यादा होगी, थोड़ा भी मूवमेंट नहीं होगा। जितना ज्यादा कैप्सूल इफेक्ट है उतना ज्यादा पेन, उतना ज्यादा स्टिफनेस, उतना ज्यादा मूवमेंट। ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रखना है जब हम फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं। तो क्लिनिकली एग्जामिन करते वक्त ही आपको पता चल जाएगा कि ये पेशेंट फ्रोजन शोल्डर के प्रॉब्लम से आपके पास आया हुआ है। ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है, तो इसके जो एनाटॉमी लास्ट क्लास में मैंने बताई थी उसको आप फिर से रिवाइज करिए, उसके बारे में देखिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो लिगामेंट्स अफेक्ट होंगे उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पे लिखा मैं। ठीक है। लेकिन प्रीवियस क्लास को आप जरूर देखिए। नाउ द causes. What are the causes of frozen shoulder? The main cause of frozen shoulders is unknown. Okay. Number one, according to this is modern diagnosis. We will talk about electrohomeopathy, everything. Other than that, secondary causes. What are the secondary causes? Diabetic mellitus, diabetes mellitus. So whoever person is suffering from diabetes mellitus in future, if his sugar levels are not in control, he may be suffered from frozen shoulder in future. This is compulsory. Okay. And some patients have trauma also. There's the reason the capsulitis occurs. Prolonged immobilization. So movement, there is no movement from longer duration. So this is rare case, but sometimes will happen. Stroke, because stroke is the case of prolonged immobilization, because he is unable to move the hand. He is paralyzed, so that's the reason he's not moving his joint. So he may be developed frozen shoulder. And thyroid disorders, rotatory cuff injuries means muscle spasm, muscle injury, muscle damage will cause. Okay. And another thing, some patient will have cardiovascular disease, CVD also. That persons also develop uh, the frozen shoulder. Okay. सो यहाँ पर हम देखें कॉजेस क्या हो सकते हैं फ्रोजन शोल्डर के। फ्रोजन शोल्डर के मेन कॉज तो अननोन है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डायग्नोसिस। लेकिन हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के बारे में भी बात करेंगे जब मैं बताऊंगा कि कॉजेस क्या हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एलोपैथी और मॉडर्न मेडिसिन, द मेन कॉज ऑफ फ्रोजन शोल्डर इज डायबिटिक। दिस इज सेकेंडरी कॉज, नॉट डायरेक्ट कॉज। प्राइमरी मीन्स डायरेक्ट कॉज। ओके। And secondary means it's happen, that's the reason this thing happening. ओके। सो जैसा कि बॉडी में आपको क्या होगा, शुगर लेवल बढ़ गया, तो शुगर जो कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में हर जगह रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरा नहीं कर पा रहा, इस वजह से वहां से कैप्सूल क्या होगा, वो अपने साइज को कम कर लिया। तो ये भी रीजन हो सकता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। सेकेंडरी कॉजेज में डायबिटीज मेलिटस है, ट्रॉमा इंजरी हुआ है, प्रोलॉन्ग्ड इम्यूबलाइजेशन यानी आपने कई वक्त तक हाथ को आपने मूवमेंट नहीं किया। जैसा उसका मेन एग्जांपल है स्ट्रोक, पैरालिसिस। पैरालिसिस में क्या हो गया, हाथ ऐसा अकड़ के रह गया। ठीक है। स्टिफनेस आ गया उसमें, तो आपका मूवमेंट नहीं हुआ, पेशेंट का मूवमेंट नहीं हुआ, इस वजह से क्या है, वहां पर फ्रोजन शोल्डर, ये सेकेंडरी कॉज है, डेवलप हुआ है। थायराइड डिसऑर्डर्स में भी सेम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है भी। रोटेटरी कफ इंजरी, मार लग गया, मसल स्पाज्म हुआ, उसकी वजह से वो इंजरी वहां तक फैल गया कि वहां पे फ्रोजन शोल्डर हो गया। और एक रीजन भी है जहाँ पे मेंशन नहीं है, वो है कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। इन दिस कंडीशन ऑल्सो सम पर्सन डेवलप फ्रोजन शोल्डर। तो ये कंडीशन में भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स ऑलरेडी हमने बात किया कि जो पेशेंट आएगा वो पेन के साथ आएगा, फर्स्ट सिम्टम। सेकंड सिम्टम है स्टिफनेस है।
थर्ड सिम्टम है मूवमेंट नहीं होगा। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया इंटरनल रोटेशन बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। और अगर उसका ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 के हिसाब से अगर देखेंगे तो एक्सटर्नल रोटेशन भी अगर मूवमेंट नहीं हो रहा उसका, तो समझना कि उसका जो फ्रोजन शोल्डर लेवल है वो बहुत सीवियर है। फर्स्ट सिम्टम में मूवमेंट में इंटरनल रोटेशन, मीडियल रोटेशन, ठीक है, मीडियल रोटेशन इस तरह। अगर आप लैटरल रोटेशन कराएंगे तो फिर भी पेशेंट कर पाएगा, लेकिन इंटरनल रोटेशन में क्योंकि कैप्सूल का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है इंटरनल रोटेशन में, ठीक है, उस वजह से ये रोटेशन करना उसके लिए मुश्किल है। एक्सटर्नल रोटेशन में क्या हो रहा है, कैप्सूल बाहर की तरफ जा रहा, बोन बाहर की तरफ जा रहा, तो इंटैक्ट कम होगा, तो उस वक्त मूवमेंट कर पा रहा है पेशेंट। ओके, सो क्लिनिकल फीचर्स, व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स? पेन and stiffness and movement. Internal rotation is very difficult rather than external rotation. External rotation he may be able to do because of intact of the capsule. Internal rotation is very difficult. Okay, and another clinical feature, if you want to tell him comb his hair, so he's unable to do combing. It is also internal rotation like this. We are doing like this, no? Difficulty in dressing, unable to wear the shirt, banyan, unable to do the brush also even sometime. And gradually the pain will increase from morning to night. So this is the also main important symptom of frozen shoulder. सो और भी दो तीन क्या है आपको देखने को मिलेंगे सिम्टम्स। पेशेंट को कहेंगे कि आप कंघी करिए, तो पेशेंट कहेगा मुझे कंघी करने नहीं आ रहा। कुछ लोग फीमेल आएंगे तो वो कहेंगे कि मुझे चोटी भी डालने नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये भी क्लासिकल सिम्टम है। डिफिकल्टी इन ड्रेसिंग, शर्ट पहनने में, कुछ भी पहनने में मुश्किल होगी, दुश्वारी होगी। और ये पेन क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। रेस्टिंग, रात में आप सोएंगे, आराम करेंगे तो ग्रेजुअली पेन कम होगा, थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको कर पाएंगे। जैसा जैसा दिन गुजरेगा पेन वर्स होगा, और साथ में स्टिफनेस भी वर्स होगी, ये इनिशियल स्टेज में हो। ओके, so what are the restricted movement? Already I've told you external rotation, abduction, internal rotation. Those are the things. Okay. So here are the stages of frozen shoulder. Very important. If the patient is coming to you, that is in the between 2 to 9 months, that is freezing stage. I mean, this is very painful stage. Increased stiffness. After 4 to 12 months, frozen shoulder second stage will start. Frozen stage stiffness. Here stiffness will have will there, but pain decreases gradually. Thawing stage means gradually recovery of movement because your body is healing to that particular thing. So it will take 6 months to 24 months. Okay, so this is a natural thing according to our body physiology. If it is he is in development stage, means younger person or below old age person like 40s 50s, till that, after that he is unable to improve because he is in degenerative stage, so you need to focus on that. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, पेशेंट अगर आपके पास कौन से टाइम पीरियड पे आ रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टेज उसको ट्रीटमेंट भी उस तरह करना पड़ेगा। और एज के फैक्टर्स भी आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे, क्योंकि 30s और 40s का जो एज बॉडी रहेगा वो जल्दी रिकवरी हो पाएगा। वही 50 60s का जो पेशेंट रहेगा वो रिकवरी उसकी क्या होगी, लेट होगी, क्योंकि वो डीजेनरेटिव स्टेज में, ठीक है। तो डीजेनरेटिव स्टेज नीड मोर टाइम, मोर ट्रीटमेंट पीरियड rather than younger एज। सो यहाँ पर पेशेंट आपके पास आएगा 2 महीने से 9 महीने के दरमियान, तो इसको कहेंगे फ्रीजिंग स्टेज। सेकेंड स्टेज है फ्रोजन स्टेज। फ्रीजिंग स्टेज में पेन भी ज्यादा रहेगा, स्टिफनेस भी ज्यादा रहेगा 9 मंथ्स तक, 2 to 9 मंथ्स। फ्रोजन स्टेज में क्या है, स्टिफनेस तो रहेगा, पेन कम होगा, पेन कम होगा। उसके बाद थॉइंग स्टेज है। अब यहाँ पर पेन भी कम होगा, स्टिफनेस भी कम होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बॉडी खुद अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रही है, इस वजह से। ओके, नाउ डायग्नोसिस। सो डायग्नोसिस इज डन बाय clinically very easy clinical diagnosis, but sometime if you need to know the depth of the disease, you need to some type of x-rays. X-rays are all not helpful,
but MRI will give you clear image of the capsule, synovial fluid, ligaments, everything. So mostly MRI shoulder will be done to see the internal uh, structure of the joint. ओके. सो यहाँ पर बहुत सारे हम लोग एक्सरे कराते हैं, लेकिन एक्सरे में उतना ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता. बोन का अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको देखने को मिलेगा, वरना एमआरआई कराना. अगर लेटर स्टेज में आपके पास आ रहा, कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितना टाइम पीरियड लगेगा, ये सब देखने के लिए फिर एमआरआई की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम कैप्सूल की हेल्थ को देखेंगे, लिगामेंट्स को देखेंगे, फिर मसल्स को भी देखेंगे, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, एवरीथिंग वी विल कैलकुलेट एंड सी. अकॉर्डिंग टू दैट यू विल काउंसिल द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू यू विल ट्रीट द पेशेंट. ओके. अब आइए बात करते हैं मैनेजमेंट में. सो ये यहाँ पे तो आपको मॉडर्न मेडिसिन के दिखेंगे, फिर हम आगे इलेक्ट्रॉन है होम्योपैथी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि पेशेंट आपके पास जब आएगा तो ये ट्रीटमेंट लेके आएगा. ठीक है. इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पास जब भी पेशेंट आएगा, ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं जाकर ही आएगा आपके पास. बहुत कम पेशेंट होंगे डायरेक्ट आपके पास आएंगे. तो ये चीज़ें आपके नॉलेज में होनी चाहिए. सो वॉट एवर ट्रीटमेंट ही विल टेक फ्रॉम द अदर डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर और एलोपैथी डॉक्टर और मॉडर्न डॉक्टर, देन he will come to you. So what type of treatment he will take physiotherapy. Most of the person, whatever pain nowadays, they will go to the physiotherapist and will they take the treatment. Okay. And shoulder mobilization exercise are important. Okay, I will show you some important exercise also. And they will take painkiller, non-steroid, anti-inflammatory drugs. Okay. Heat therapy they will take, medical treatment they will take, some persons will take injections also, shoulder joint, at shoulder joint. Okay. That are called corticosteroid injections, that will be given by orthopedic surgeon. Okay, it's not our duty. Next, hydrodilation. Some sort of injections will be given to dilate the capsule, dilate the space of the uh, shoulder joint. Okay. And surgical treatment if needed. Okay. If the damage of rotatory cuff, sometimes he need surgical treatment, depend upon the condition. And sometimes they will do manipulation, or they will give anesthesia and they will rotate. So after that, the stiffness that will go. Okay. And sometimes they will do arthroscopic capsular laser, means whatever fibrous or form, thick fibrous or form, they also sometimes create stiffness. Everything is healed, but there is a stiffness due to the capsular thickness or fibrous. Okay. So you need to release that fiber. Okay. So sometimes they need arthroscopic capsular release. Okay. So these are the modern medicine treatment. So मैनेजमेंट में यहाँ पर हम लोग मॉडर्न मेडिसिन का देख रहे हैं, ताकि हमें नॉलेज हो कि जो भी पेशेंट आपके पास आ रहा है वो क्या ट्रीटमेंट लेके आ रहा है. फिजियोथेरेपी करा के आते हैं अक्सर लोग, और एक्सरसाइज कराते हैं, और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जो पेन किलर जिसको कहते हैं, वो देते हैं. और हीट थेरेपी. मेडिकल ट्रीटमेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे शोल्डर में इंजेक्शन लेते हैं, वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन होते हैं जो पेन को, स्टिफनेस को और मूवमेंट को इम्प्रूव करते हैं. वो कुछ 3 5 या 2 4 इंजेक्शंस कुछ लेना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू ऑर्थोपेडिक सर्जन दे विल फॉलो द एडवाइस. ओके. हाइड्रोडाइल्यूशन कराते हैं इंजेक्शन, ये भी इंजेक्शन के जरिए से. और सर्जिकल ट्रीटमेंट में कराया जाता है, जैसा कि मैनिपुलेशन, एनेस्थीसिया दिया जाता है और रोटेट किया जाता है, पूरे एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन किया जाता है. और साथों उसके साथ, उसके अलावा जो कैप्सूल है वहाँ पे फाइब्रस फॉर्म हुआ है टिश्यू, उसकी वजह से भी पेन नहीं जाता किसी की. तो वहां पर ऑर्थ्रोस्कोपी, एक स्कोप है टेलीस्कोप के जैसा, वहां पे 2 3 होल मारते हैं, मिशन वहां से जाता है, जाके उसको कट करके फिर रिलीज कर देते हैं. तो ऐसे भी ऑपरेशंस देखने को मिलते हैं. या रोटेटरी का इंजरी हुआ, उसमें भी आपको फ्रोजन शोल्डर हो सकता है. सो वट एवर कंडीशन यू नीड टू ट्रीट अकॉर्डिंग टू दैट. तो यहाँ पे देखिए इमेज में आप सब लोग देख सकते हैं फ्रोजन शोल्डर क्या है, इसके बारे में क्या है. कैप्सुलाइटिस, जॉइंट कैप्सूल, और रोटेटरी कफ, साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिए गए हैं. ये सब आपका
जो है summary. So here is the summary of, in this diagram I explain the summary of the rotatory cuff. Now come to the part of treatment in electrohomeopathy. Very very important, because as a electrohomeopathy doctor you have to know this. Okay. So now patient is coming to your clinic. You examine that he is suffering from frozen shoulder. So now the part of the treatment. Before going to the part of treatment, you have to diagnosis according to electrohomeopathy. It is your duty. क्लिनिकल डायग्नोसिस करने के बाद भी आपको, ये तो कंफर्म हो गया फ्रोजन शोल्डर है, लेकिन आपको कंफर्म और एक बार करना है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ट्रीटमेंट करने के लिए इसको क्या डायग्नोसिस करना है, क्योंकि हमारा बेसिस है लिम्फ एंड ब्लड। तो इसका लिम्फ खराब हुआ या ब्लड खराब हुआ, लिम्फ रिलेटेड ऑर्गन खराब हुए या लिम्फ ब्लड रिलेटेड ऑर्गन अफेक्टेड हुए, इसकी वजह से जाके वो कैप्सूल इफेक्ट हुआ। तो आपके पास जब भी पेशेंट आपके पास आए तो उस प्रॉब्लम को ऑर्गन से जोड़िए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टू चेक वेदर इट्स बिलोंग्स टू लिम्फ और ब्लड, lymph related organ or blood related organ. You have to connect with the organ. Okay. You have to connect with the organ whether this problem is related to which organ. Okay. So frozen shoulder. Okay. So now you have to do the diagnosis. We have traditional diagnosis like pulse diagnosis, tongue diagnosis and iris diagnosis. You have to check. आपको चेक करना है पल्स पकड़कर कि कौन से टेम्पैरमेंट का है पेशेंट, फिर वो टेम्पैरमेंट में कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है, कौन से ऑर्गन के अफेक्टेशन में किस लेवल के अफेक्शन है, उसके अंदर प्रॉब्लम है। ये सब आपको पल्स से चेक करना होगा। टंग डायग्नोसिस से भी आप कर सकते हैं, टंग देखकर कौन सा ऑर्गन इफेक्ट है, और आइरिस डायग्नोसिस से भी आप इसकी मदद ले सकते हैं। अब ऑलरेडी आपके पास पेशेंट है, उसमें एमआरआई भी होगा, तो इससे आप कंबाइन करिए आपके डायग्नोसिस, जो ट्रेडिशनल आपने डायग्नोसिस किया और एमआरआई आपने कराया, उन दोनों को कंबाइन करके फिर आप एक ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। ठीक है। और साथों में आप इस चीज का भी ये ध्यान रखना है कि पेशेंट का क्लिनिकल हिस्ट्री क्या है, यानी और कौन से पास हिस्ट्री है उसके पास। डायबिटीज मिलेटस से तो सफर नहीं कर रहा, वो थायराइड से तो सफर नहीं कर रहा, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस से तो सफर नहीं कर रहा। अगर सफर कर रहा तो उसका भी ध्यान आपको रखना है, उसको भी मेंटेन कराना है, अगर वो मेंटेन नहीं हो पा रहा। ठीक है। तो ये तीन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है आपको। ठीक है। तो पहला टारगेट हमारा क्या होगा, पेन कम करना है। पेशेंट आपके पास आया पेन कम करने के लिए, स्टिफनेस कम करना है। ठीक है। और उसको न्यूट्रिशन भी देना है, तो ये टारगेट आपको रखना है। डायग्नोसिस करते हुए ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है यहाँ पर, मैंने यहाँ पे बताया, लेकिन हर एक के लिए फॉर्मूला काम नहीं आएगा। फिर आपको अकॉर्डिंग टू द कंडीशन डायग्नोसिस आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसा कि अब मैंने यहाँ पे S5L1BE ये आपको देना है, C5N1GE, F1A3C5RE, C17YE, और अप्लाई के लिए F2C3BERE और F2C3GERE। यहाँ पे C3 की जगह C5 लिख लीजिए। ठीक है। तो बेसिकली आपने डायग्नोसिस किया पेशेंट का पल्स के थ्रू, मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ। मालूम ये हुआ कि लिवर अफेक्टेड है, तो लिवर का फंक्शनल रेमेडी स्ट्रक्चरल रेमेडी आपने ऐड कर दिया, S5L1C5, और L1BE आपने ऐड कर दिया। C5 वेन वन स्ट्रक्चर खराब है तो वेन 1G बहुत अच्छा काम करेगा वहां पर, तो आपने ऐड कर दिया। और पेन के लिए आपने F1A3C5RE, ये पेन के लिए आपके पास कुछ फॉर्मूला है तो वो भी आपने ऐड कर दिया। और C17+YE, इसको क्यों ऐड किया आपने, इसलिए ऐड किया कि वहां पर डेब्रीज है, वहां पे डेड सेल्स होंगे, तो आपको उसको भी एलिमिनेट करना है। यू हैव टू एलिमिनेट दैट debris or dead cells. So you need detoxify remedy. So in electrohomeopathy, C17 is the detoxifier along with Y. If required, you have to add sometime vervan also. So here we discussed that due to the pulse diagnosis, you got liver problem. Patient have liver issue. So there's the reason he developed this frozen shoulder. So there's the reason you added S5. Next time, then whenever a patient comes, you have to again to do pulse diagnosis, again to do tongue diagnosis, or again you have to do iris diagnosis. According to that, which organ is affected,
again you have to select that remedy. But according to structural remedy, the the thing is work on ligament or tendon or capsule, okay, cartilage, that is C3, or membrane. So C3 is your structural remedy of frozen shoulder. You have to remember that after reducing the pain, stiffness, even if you want to give nutrition, or you can give C3 separately, fifth remedy as. Okay, along with that, आपको structure सही करना है. You have to giving, you are adding nutrition to the uh, uh, capsule, okay, or cartilage. Okay, you have to compulsory at C3. Then only your treatment will complete. This is called reparatory. Okay, reparatory treatment in electrohomeopathy. Okay, along with that you have to give massage और oil. इसके साथ आपको मसाज भी करने के लिए या एप्लीकेशन के लिए देना है आपको. In that you have to add F2C5 RE or BE. Okay, right side BE, left side GE, right side RE, left side YE. Initially start with BE, after that convert the BE into RE to stimulate the improvement of the capsule. Initially you have stiffness, pain, everything. It will reduce by BE. Okay, then after you have to add, after then you have to remove the BE and add RE to stimulate the improvement process of capsule. So this is the idea. This is the plan of treatment. Okay, you have to give ointment or oil form for massage. Gradually you tell them to massage that area. This is you have to give in D3. Okay, D3 is very important, and you can give in for cold compression or hot compression. Initially, you start with cold compression because of stiffness, inflammation for that thing. Then pain, inflammation reduce. For improvement, start with hot compress for circulation, for nutrition purpose. ओके, सो दिस इज द प्लान ऑफ ट्रीटमेंट इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी. सो इस तरह हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ट्रीटमेंट करते हैं. ऑर्गन मालूम करिए, फिर स्ट्रक्चर को भी आप नज़र में रखिए, फिर जो आपने पास्ट हिस्ट्री का हेल्प, पास्ट हिस्ट्री आपको मालूम है उससे भी आप, उसको भी आपको ध्यान में रखना है. तो तीनों चीज़ों को जब आप कंबाइन करेंगे, फिर रेमेडी सेलेक्ट करेंगे, यू विल गेट डेफिनेटली रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट्स. ओके, इसके अलावा अब और क्या कर सकते हैं? इसके अलावा तीन चीजें ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं. थेरेपी से, थेरेपिस्ट में आप पेशेंट को पहले कहेंगे, ठीक है, ये आप साथों साथ करना है तो कर सकते हैं, या फिर आप अलग से आप इसको किसी और की जगह करा सकते हैं, किसी पेशेंट को एडवाइस कर दे. कपिंग थेरेपी है जिसमें क्या है, स्टिफनेस आपको, पेन आपको, जैसा कि आपने अप्लाई कराया, क्योंकि अप्लाई कराने के लिए आपके पास रेमेडीज है. अप्लाई कराने के साथ साथ आपने अगर वहां पे कुछ कप लगाया, सक्शन कराया, ताकि एक्सेस लार्ज अमाउंट ऑफ मेडिसिन विल रीच टू दैट एरिया, सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू. फर्स्ट यू आर डूइंग कपिंग. पहले आपने कपिंग किया, फिर उसके बाद आपने अप्लाई किया, तो डीप लेवल तक मेडिसिन पहुंचने के चांसेस हैं. इसके अलावा एक्यूप्रेशर वगैरह भी आप करा सकते हैं पेशेंट को. तो वो देखिए आप अपने हिसाब से, अगर पेशेंट अगर कराना चाहे तो करा सकते हैं, आपके पास वो थेरेपीज अवेलेबल है तो आप करा सकते हैं. लेकिन दो चीजें आप जरूर कराइए, कराइए पेशेंट से. एक एक्सरसाइज along with remedies, then along with that diet and exercise you have to learn along with the treatment, because it will increase the result 10 to 15%. ओके, सो अगर आप डाइट और एक्सरसाइज अगर साथ में एड अप करते हैं, तो आपका रिजल्ट 15 to 20% जल्दी आपको मिलेगा. देखिए, कुछ फ्रोजन शोल्डर्स के एक्सरसाइज हैं जो मैंने इमेज में दिए हैं, आप उसको देख के, मैं पीडीएफ जो भेजूंगा देखिए, उसमें से आप करा सकते हैं पेशेंट को. ओके, और एल्स यू कैन गूगल इट, और नाउअडेज एवरीथिंग इज अवेलेबल. ओके, आप देख सकते हैं, उसमें भी ये सब एक्सरसाइज है जिससे क्या होगा, मूवमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी. ओके, एंड नाउ avoid according to diet is very very important. If he is
Diabetic patient avoid refined sugars, avoid heavy lifting, avoid prolonged immobilization of the shoulder joint. So these things you have to remember. So this is all about the frozen shoulder. So ये सब चीज़ें हमने देखी फ्रोजन शोल्डर में. क्लिनिकली पेशेंट कैसे प्रेजेंट होगा और ट्रीटमेंट क्या देना है आपको. ठीक है. और इसके साथ साथ क्या थेरेपीज करा सकते हैं आप. एक्सरसाइज आपको कराना चाहिए डाइट के साथ. डाइट में फ्रोजन शोल्डर में अगर डायबिटिक है तो उसको रिफाइंड शुगर कट ऑफ कराइए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट इन फ्रोजन शोल्डर. आई थिंक यू अंडरस्टूड अबाउट दैट. आपको समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.